हेलो एवरीबॉडी। बहुत सारे बच्चों को मैक्रो में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इंडियन इको के भी हम बाद में बनाएंगे वीडियोस, बट फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ मैक्रो। तो पूरी मैक्रो को कोशिश रहेगी कि 5 से 6 घंटे के वीडियोस में हम कवर करें, लेकिन मैं बहुत छोटे छोटे वीडियोस बनाऊंगी, छोटे छोटे टॉपिक्स के, लाइक 10 मिनट्स वीडियोस, क्योंकि हर बच्चे के जो हैं वो स्पेसिफिक डाउट्स हैं। तो ये नहीं कि हाँ पूरा नेशनल इनकम का वीडियो देखना पड़े या उसमें ढूंढना पड़े कि ये टॉपिक कहाँ है। तो बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते हुए 10 10 मिनट्स के वीडियो बनाऊंगी, सो दैट यू कैन फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक जिस पे आपका डाउट है। ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि ये वीक स्टूडेंट्स के लिए है या ये इंटेलिजेंट के लिए है। जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा है, तो इट इज मीनिंगफुल फॉर एवरीबडी। किसी एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को लेकर मैं नहीं चल रही। वैसे भी अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के बाद ऐसा डिस्टिंक्शन करना कि कुछ एक सिलेक्टिव कर लो और तुम कर पाओगे, इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। कहाँ से किस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन आएगा, आप तभी हैंडल कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। कोई भी अगर आपको ये गाइड कर रहा है कि सिर्फ इतने क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, सिर्फ इतना सा हो जाएगा, नो। कई बार मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ हाँ ये 20 सैम्पल पेपर्स कर लो हो जाएगा, लेकिन वो 20 सैम्पल पेपर्स ऐसे होते हैं जो पूरे सिलेबस ही कवर कर रहे होते हैं। तो सिर्फ उनको एक सेटिस्फेक्शन हो जाता है कि अच्छा चलो मुझे इतना ही पेपर करना है। बट अदरवाइज आई सिलेक्ट दोज पेपर्स इन सच अ वे कि इट इज कवरिंग अप ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस, राइट? So with this perspective, let's start. Our very first chapter is macroeconomics introduction. We are not going by NCRT. We shall be talking in terms of help books. There are many help books. I don't want to name anyone. So they have bifurcated, generally speaking, macro into 12 chapters. So we are talking about first chapter that way. So what is macroeconomics? Macro is compared with a forest. If micro is a tree, macro is a forest. If micro is a drop of water, macro is ocean. So macro is looking at a bigger picture. It is not talking about individual or group of individuals. ठीक है? Macro is talking about bigger picture, right? So this is how macro is. So it talks about economic issues at macro level. Macro level means whole economy level. Now you are not talking about one particular person, you are talking about economy as a whole. Okay. So when we talk about macroeconomics, there are basically four basic concepts. Four basic concepts are production, consumption, investment, and distribution. Okay. So production is transformation of inputs into output. When we talk in physics, we say matter can neither be created nor be destroyed. Then what is production? So production basically is you are not creating or destroying anything. You are just changing its form, place, and that way you are adding utility into that. For example, you are converting furniture, wood into furniture, or you are converting fabric into stitched cloth. So that kind of thing is called production. When you make use of that thing, this is called consumption. Investment, sometimes we produce such goods which do not help directly in consumption but help in production of other goods. So production of such goods is known as investment, like machinery, tools, equipments. So they add on to capital stock of the society. Distribution, once this income is generated, it gets distributed. So distribution is considered in two ways. One, functional distribution. Second, personal distribution. Functional means what share of GDP is getting as wages and salaries, what share of GDP is going as rent, what share of GDP is going as profit. And personal means whether this income is equally distributed or unequally distributed, right? Then there is a beautiful concept of circular flow of income on the basis of which the entire macroeconomics works. The basic fundamental principle of macroeconomics is that one man's expenditure is another man's income. If you will spend something, somebody else will get it as an income, and the cycle will go on. And that is why saving is a beautiful thing at micro level, but a problematic issue at macro level if this saving is not converted into investment, right? So saving converted into investment is very good,
but saving not converted into investment is problematic. Okay, so in a two sector economy, when I say two sector, there are basically four sectors in an economy: household, firms, government, and foreign sector, right? Household means that sector which is providing factor services and consuming goods and services. Firms, that sector which is involved in production activity. Government, which is taking care of law and order in the economy and at the same time involved in production activities. And rest of the world is foreign sector. Along with that, there is a fifth sector which is called financial sector, but we include it in two sector, right? तो आप ये देखिए, ये हाउस होल्ड सेक्टर है आपका और ये आपकी फर्म्स है. तो हाउस होल्ड फर्म्स को क्या दे रही हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट? तो कुछ भी फ्री में तो नहीं दे रही हैं. बदले में ये इनको क्या दे रहे हैं? ये दे रहे हैं लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट्स. ठीक है, तो फैक्टर सर्विसेज के बदले इनको फैक्टर पेमेंट्स मिल रही हैं. तो ये जो इनर सर्कल है, दिस इनर सर्कल इज रियल फ्लो, और ये जो आउटर सर्कल है, दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो. तो एक एंड से रियल फ्लो होता है, दूसरे एंड से मनी फ्लो होता है. दिस इज हाउ द साइकिल गेट्स कंप्लीटेड. ऐसा कभी नहीं होगा आपको मैं पढ़ाऊं और मैं ही पैसे दूं. पढ़ाऊंगी मैं तो पैसे आप दोगे. तो मेरे एंड से रियल फ्लो हुआ, आपके एंड से मनी फ्लो हुआ. ऐसा नहीं होगा कि शॉपकीपर आपको कोल्ड ड्रिंक भी दे और पैसे भी दे. पैसे आप दोगे, कोल्ड ड्रिंक वो देगा. तो एक एंड से मनी फ्लो होगा, एक एंड से रियल फ्लो होगा. ओके. फिर फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, एंड दे पे इन रिटर्न. ठीक है. फाइनेंशियल सेक्टर, जब भी आपको टू सेक्टर आए, इट इज ऑलवेज बेटर कि आप फाइनेंशियल सेक्टर भी शो करो. हावेवर ऐसा नहीं है कि हाउस होल्ड जो है, फर्म्स जो है बिल्कुल सेविंग नहीं करती, लेकिन जनरली हाउस होल्ड सेविंग करते हैं बैंक्स में. लाइक हम अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं और उसी पैसे को बैंक जो है फर्म्स को लोन दे देते हैं, वो इसे इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करते हैं. तो वो सेविंग खराब नहीं है जो आप बैंक में कर रहे हैं. सेविंग वो खराब है जो घरों में लोग ब्लैक मनी रखते हैं, वो लीक होती है. इसको तो फाइनेंशियल सेक्टर वापस लीकेज को इंजेक्शन में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. लीकेज इंजेक्शन क्या होते हैं? वो चीज जो सर्कुलर फ्लो को कम करे वो लीकेज है, वो चीज जो सर्कुलर फ्लो को बढ़ाए वो इंजेक्शन. राइट. सो दिस इज कॉल्ड टू सेक्टर मॉडल. तो अगर ये आपको आएगा तो आप ये पहले चार्ट बनाएंगे, इस चार्ट को इलेबोरेट करेंगे और इसकी एजम्पशन लिखेंगे. वी आर एज्यूमिंग दैट देयर आर ओनली टू सेक्टर्स. We are also assuming that there is no government, no role of government. We are a closed economy. We are not dealing with rest of the world, right? And this is how things are happening. Okay. So this is called circular flow. Why is it called circular flow? Circle is getting completed. Money flow from one side, real flow from other side, right? Three sector and four sector is not in our syllabus, so don't bother to do that. If for CUET you can, but for CBSE you don't need. Now, I told you that this inner circle is real flow and outer circle is money flow. So there can be a separate question, distinguish between the two. So flow of goods and services and factor services from one sector to another is called real flow, and flow of money from one sector to another is called money flow. रियल फ्लो होगा तो मनी फ्लो कॉरेस्पॉन्ड करेगा. ठीक है. यहीं पे एक बात समझ लीजिए कि अगर मनी फ्लो हो रहा है और रियल फ्लो नहीं हो रहा, तो उसी को हम ट्रांसफर पेमेंट कहते हैं. जैसे बेगर को अपने पैसे दिए, उसने बदले में आपको कुछ नहीं दिया, तो वो ट्रांसफर पेमेंट हो गई. नेशनल इनकम में सिर्फ वो आएगा जिसमें रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों. अगर मनी फ्लो हो रहा है, रियल फ्लो नहीं हो रहा है, तो वो चीज नेशनल इनकम में नहीं आएगी क्योंकि आउटपुट कुछ नहीं हुआ. ओके. रियल फ्लो का नेक्स्ट नेम फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो का नेक्स्ट नेम नॉमिनल फ्लो. तो रियल फ्लो के बिना कोई इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती. बार्टर सिस्टम था तो मनी फ्लो नहीं था, बट इकोनॉमी सरवाइव कर रही थी. लेकिन कोई इकोनॉमी हो जहां मनी ही मनी हो, रियल फ्लो ना हो, तो इकोनॉमी सरवाइव नहीं कर सकती. ओके. अदरवाइज आप सोचो, आपके घर में भी एक कमरा हो उसमें नोट भरे हो, मेरे घर में भी एक कमरा हो उसमें नोट भरे हो, और आप मुझे कहो कि आप मुझे पढ़ा दो, मैं आपको फीस दूंगा. मैं क्यों लूंगी फीस? मेरे पास पैसे ऑलरेडी है. लेकिन जब मैं मार्केट जा रही हूँ, मार्केट में ना चावल है, ना आटा है, ना कपड़े हैं, ना मोबाइल है, ना लैपटॉप है, गुड्स एंड सर्विसेज है ही नहीं. तो क्या हम मनी खाएंगे या मनी से हम अभी ये वीडियो देखेंगे? नो. तो मनी फ्लो अपने आप में किसी काम का नहीं है. मनी इज जस्ट एन इल्यूशन. ओके. इकोनॉमी जो चल रही है वो रियल फ्लो पे चल रही है.
राइट। अब इतने से टॉपिक के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है ये फिनिश हो जाता है। एक छोटी सी चीज और आती है उसमें, इंजेक्शन और लीकेज, जो मैंने आपको क्लियर की। जो चीज सर्कुलर फ्लो को कम करेगी वो लीकेज है। तो बेसिकली 3 लीकेज है, सेविंग, टैक्सेस और इम्पोर्ट्स। और जो इसे बढ़ाएगी वो इंजेक्शन है। तो क्या चीज बढ़ाती है? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। जब हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट करेंगे वहां ये बात मैं आपको याद कराऊंगी कि हमने लीकेज इंजेक्शन किया था। जहां लीकेज और इंजेक्शन बराबर हो जाते हैं वहीं इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होती है। बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देख रहे होंगे वो, मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो अप्रैल वाला बैच से मैं बात नहीं कर रही हूँ अभी, मैं रिवीजन वालों से बात कर रही हूँ। तो उन्होंने कम से कम वंस एक बार मैक्रो को देखा हुआ। ओके, सो आई एम लीविंग इट हियर। इस वीडियो को देखने के बाद आप जो भी बुक रेफर कर रहे हैं उसके फर्स्ट चैप्टर के सारे एमसीक्यू, असर्शन, रीजन, ट्रू फॉल्स करेंगे, तब इस वीडियो को देखने का फायदा है। उसके बाद मेरा सेकंड वीडियो देखिए। ये नहीं वीडियो देखते जा रहे हैं और आपको गलतफहमी है कि हाँ वीडियो देख लिया हो गया। नो, वीडियो इज जस्ट फॉर conceptual clarity, उसके बाद यू नीड प्रैक्टिस एंड सेल्फ स्टडी। ओके, थैंक यू सो मच।